Assalamu alaikum, dear students. Today we will understand another experiment of the experimental pharmacology, which is the experiment number 20 and experiment number 21 of the course number 510. And this lecture will also helpful for the 4th year students and their experimental pharmacological lab 612 for their calculation of the dose and for the preparation of the drug solutions. So both here can listen this lecture and try to understand how we can calculate the animal dose. Now let's start it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. What is animal dose and what is the importance of the animal dose? We have discussed the clinical trials and the complete step of the research कि कैसे एक research होती है. And the most important thing in the research regarding the experimental pharmacology is the calculation of the dose. We are basically using the animals during the for the pharmacological evaluation of the drugs, and these drugs are intended for the human use, and this is the basis for the non-human research model like mice model, like rat models. And बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम एनिमल डोज जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह कोई भी ड्रग जो है वो एनिमल्स में कैसे दी जाती है, हाउ वी कैन एडमिनिस्टर द ड्रग and what are the methods to calculate the doses in animals. These calculations are basically based on the stock solution preparation. Initially we have to prepare a stock solution and then we have to use certain types of formulas to derive the accurate quantity which will be administered in the experimental animals. This step is very complicated and it is not easy, and if the students are not serious to learn it, then the whole experiment will be wrong. Another problem is that the procedure of the calculation of the drugs is not clearly explained in mostly scientific literature, and you don't find it anywhere. So it is a major challenge to some undergrad students and the postgrad students and the researchers to easily understand the method to prepare for the administration of the drug in the animals. 90% of the animals are used in the in vivo experiments in medical, in physiological, in pharmacological, chemical, toxicological, biological, biochemical and the genetic studies, and we are basically using the rat and the mice. The aim of the current experiment is to simplify the calculation of the doses, is to preparation of the stock solution to benefits all research students. Usually for the calculation of the dose we should learn that how doses are represented initially. Whenever we are studying a research article, उसमें जब भी हम उसको गौर से देखते हैं, you can easily understand कि उसमें जो doses होती हैं वो usually mg per kg में दी हुई होती है. एक अप्रोच तो ये है कि हम mg पर kg की अप्रोच यूज़ करें. दूसरी अप्रोच ये है कि वी विल यूज़ माइक्रोग्राम पर kg. एंड थर्ड अप्रोच ये है कि हम सिंपल जो ह्यूमन डोज है वही कैलकुलेट कर लें और वो फिर जो ह्यूमन डोज है उसी से फिर बॉडी वेट की बेसिस पे उसको कन्वर्ट कर दें एनिमल डोज में, एंड देन वी विल यूज़ द क्वांटिटी जो कि हमने एनिमल वेट की बेसिस पे की है उसको फिर हम उस हिसाब से एडमिनिस्टर कर दें. The most important things are that how many animals have to be treated.
उसके हिसाब से हमें अपना स्टॉक सोल्यूशन की क्वांटिटी प्रिपेयर करनी होती है। और यूजुअली इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रुप्स, वी हैव मिनिममली अगर हम देखें तो 30 एनिमल्स या 30 माइक या 30 रैट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं। कैसे? बेसिकली वी हैव एसेंशियली 3 ग्रुप्स, वन इज़ कंट्रोल, वन इज़ स्टैंडर्ड एंड वन इज़ टेस्ट ग्रुप। और टेस्ट ग्रुप में भी हमारे पास डोजेज वेरिएशन के हिसाब से 3 फर्दर ग्रुप्स हो सकते हैं, जो कि मिनिमम लोअर डोज, मीडियम डोज एंड हाई डोज। इस हिसाब से हम देखें तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्रुप्स, और हर ग्रुप्स के अंदर हमने यूजुअली 7 to 10 एनिमल्स हम लोग लेते हैं टू गेट दी रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिक, उससे हम सिग्निफिकेंस हासिल कर सकें। तो यूजुअली इफ़ वी कंसीडर दैट कि वी हैव 10 एनिमल्स, देन वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 50 एनिमल्स जिनमें हमें डोजेज जो है वो एडमिनिस्टर करनी है। तो फर्स्ट वी विल नो कि हमें कितनी वॉल्यूम ऑफ द ड्रग्स, कितना सोल्यूशन हमें चाहिए एडमिनिस्टर करने के लिए कि हम ड्रग को आराम से एडमिनिस्टर कर सकें। पहली इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमें कितना स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और कितना सीरियल डाइल्यूशन हमने उससे प्रिपेयर करना है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स कि कितने हमारे पास एनिमल्स हैं, उस हिसाब से फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। देन फिर हमारे पास अनदर अप्रोच ये है कि हाउ मैनी ट्रीटमेंट्स हैज़ टू बी गिवन, कि कितना हमारे पास जो है वो हमें ट्रीटमेंट कितनी दफ़ा देना है। दिन में एक दफ़ा ड्रग एडमिनिस्टर करनी है या उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी फिर हमें करनी है। डेली अगर करनी है, वंस करके उसका रिजल्ट ख़त्म कर देना है, या फिर हमें हर रोज़ ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, उस हिसाब से भी हमें जो ड्यूरेशन ऑफ हमारी स्टडी है उससे हम इंटरप्रिटेट करेंगे कि हमें कितने दिन जो है वो ड्रग की नीड रहेगी। देन वी विल ऑल्सो नो कि हमें कितना वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन, कितना अमाउंट है जो कि एडमिनिस्टर करना है एनिमल के अंदर, एंड वी हैव टू फिक्स इट। इसे हमें एक फ़िक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस लानी पड़ेंगी। इसीलिए हम एक टेंटेटिव वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर जो है वो अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा एक वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। स्लाइट वेट बेसिस पे उसका वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम और ज़्यादा हो सकता है माइन्यूट क्वांटिटीज़ में, लेकिन वी हैव टू सेट कि हम कितना देंगे वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो भी हमने सोल्यूशन बनाया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी मस्ट नो इज़ द बॉडी वेट ऑफ द एनिमल्स। हमें जो है वो वेट एनिमल का पता हो। वी शुड नोट the weight of each and every animal used during the experiment, and easy approach is to take the average। पहले हम एवरेज से कैलकुलेशन कर लेंगे, देन जो भी चेंजेस हमें पे करनी होगी फिर हम वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से माइन्यूट जो चेंजेस होंगी 0.01 0.02 वाली, फिर वो हम वॉल्यूम एडजस्टमेंट से जो है वो सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें कंसीडर करनी है, जिसमें बॉडी वेट ऑफ द एनिमल इज़ वेरी एसेंशियल, डिज़ायर्ड वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन जो कि हमें एक कांस्टेंट सेट करना है वो हमें एक सेट करना पड़ेगा। हमें फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी ड्रग की कि हमें कितने दिन देनी है, रोज़ाना एक दफ़ा देनी है, डेली एक वीक की स्टडी है, 14 डेज़ की स्टडी है, या 3 मंथ्स की स्टडी है, 6 मंथ की स्टडी है। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी वी नीड टू प्रिपेयर आर स्टॉक सोल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेबिलिटी, कि कितने दिनों तक वो स्टेबल रहता है, उस हिसाब से हम मैक्सिमम क्वांटिटी फिर उसकी बना कर रखेंगे ताकि हमें ईच टाइम जो है वो हमें अपनी जो टाइम है हमारा जो है वो सेव हो सके। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द एनिमल, कितने हमें एनिमल ट्रीट करने हैं उस हिसाब से हमें डेली पे ड्रग्स जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटेशन इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी कैलकुलेशन, एनिमल डोज कैलकुलेशन। इफ़ द एनिमल डोज कैलकुलेशन इज़ रॉन्ग ड्रग इज़ एडमिनिस्टर, रॉन्ग क्वांटिटी विल बी देयर। जैसे अब हमें पता है कि हमें इफ़ेक्टिव डोज देनी है इतनी कि वो अपना थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर सके। अगर वो इफ़ेक्टिव कंसनट्रेशन को, मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसनट्रेशन को नहीं रीच कर रही है
और डोज कैलकुलेशन की वजह से, डोजेज एरर की वजह से उसके जो ब्लड वॉल्यूम्स हैं उसमें इनफ क्वांटिटी नहीं है, देन इट विल बी वेरी डेंजरस कि हमारा पूरा जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है कि एनिमल डोज की कैलकुलेशन हमें प्रॉपर करनी है, और जो उसके लिए हम लिटरेचर सर्वे भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड हम ये देखेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड को कितनी क्वांटिटी में दिया गया है, और वो जो लिटरेचर है वो सपोर्ट करेगा उस आइडिया को कि उस लिटरेचर से हम ये वेरीफाई करेंगे कि कितनी क्वांटिटी हम यूजुअली देते हैं, उससे फिर हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो पूरी फार्माकोलॉजिकल रिसर्च जो है वो बेस कर रही है एनिमल डोज कैलकुलेशन पे। What are the guidelines on the dosage calculation and the stock solution preparation in animal studies? ये जो है वो मैंने एक आर्टिकल से लिया है जिसका रेफरेंस यहाँ डाला हुआ है। एंड इफ़ वी कंक्लूडेड, so initially we have to prepare a crude extract or any drug solution. Then we have to do some calculations on the copy on the notebook. After notebook calculation, we will prepare its stock solution, and then this stock solution will convert into certain types of dissolution or dilution procedure. And this dissolution and dilution procedure, after setting, we will set the volume of administration कि कितना वॉल्यूम पर एनिमल हमें एडमिनिस्टर करना है। उस हिसाब से फिर हम उसको देखेंगे कि कितने माइस हैं, कितने एनिमल्स हैं, एंड फॉर एग्जांपल रैट्स कितने हैं, उसमें हमने डोज कैलकुलेट करनी है। And then after that we will administer the drug, and we will wait for the response unless and until the drug is absorbed. Usually it took 30 minutes कि 30 minutes में drug जो है वो absorb हो जाती है and it will produce its effects. So this is the general procedure के initially we will prepare the stock solution, and then we will dilute it in a serial dilution by the serial dilution method, and then we will calculate the dose, calculate its volume to be administered depending upon the need. Then we will administer it in an animal, and then after it we will wait for the response, and then we will perform its pharmacological evaluation. Another important thing is the vehicle, and the vehicle should be chosen in such a way that drug will be easily dissolved in it, and volume selection should also be rational. Vehicle is basically any liquid, any substance that act as a medium in which the drug is administered, through which we are basically using this drug for the transportation of the drug in the animal model. And essentially it should be biologically inert, it should not have any toxic effects on the animals, and most importantly it should not influence the or change the results of the experiment. जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर कोई इसका इफ़ेक्ट ना हो, इसीलिए we are making the design in such a way so each time we have to use the control group in which we are using the vehicles. जो भी हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, however लिटरेचर अवेलेबल है, डाटा अवेलेबल है, लेकिन हम हर दफ़ा कंट्रोल का ग्रुप जो है वो रिपीट करेंगे जिसमें वो व्हीकल यूज़ हुआ है टू नलीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ, जो भी उसका इफ़ेक्ट है उसको हम नलीफाई करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं. What are the suitable vehicles for the animals research? These are most important are the distilled water or the normal saline, that is 0.9% sodium chloride, and 50% polyethylene glycol, 5 to 10% tween 80, 0.25% methyl cellulose and carboxymethyl cellulose, depending upon the solubility कि किस में हमारी ड्रग जो है वो बहुत ईजीएस्ट जो है वो वे में डिलीवर हो सकती है. सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है व्हीकल वो है डिस्टिल वाटर, जो कि हमें पता है कि ये एक बायोलॉजिकल फ्लूइड भी है और हमारी नॉर्मल बॉडी का पार्ट है सेल का, इसलिए सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ होता है वो वाटर फॉर इंजेक्शन एंड डिस्टिल वाटर यूज़ होता है. और अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दी गाइडलाइंस,
then according to the OECD guideline, which is the Organization of the Economic Cooperation and Development guideline regarding the dosage of the drug, द वॉल्यूम जो है वो उसकी एक लिमिटेशन है एंड द वॉल्यूम ऑफ एडमिनिस्टर शुड नॉट एक्सीडिंग दी 10 ml पर kg, यानी 10 ml पर kg से ज़्यादा हम मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं दे सकते. और इन शॉर्ट वे वी कैन से कि 1 ml पर 100 ग्राम, हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स एंड द माइस.